So we'll go for a create new project. We are in a code block now. यहाँ पे भी आप यहाँ से भी एक टैब आता है create new project और फाइल में से भी new project. ठीक है, वहां से लेना है आपको. You have to take select console application. Okay. Next C programming. Here project title. तो मैम एम्प्टी फाइल लेके सी डॉट से सेव भी तो कर सकते हैं ना. first we need to create project and in that you can have a c.c file. उसमें आप number of c files create कर सकते हैं. Okay. So ये previous वाला थे वैसे. ठीक है. So this is my project and this is main.c. Okay. Now here we add one more library file, a library that is string.h. अभी मैंने जो बोला वो string.h हमारे फर्स्ट इसमें अलाउड नहीं है. अभी सेकेंड असाइनमेंट हम कर रहे हैं. ओके, दिस इज माय string.h. नाउ what we will do, we will create one structure. Okay, structure student. In this I will take int roll number, char name, okay, and float marks. Okay, now here only I will create the array of it, that is s1 of 100. Okay, this is the one method that I have already taught you while teaching the how to create structures. Okay, at that time, and you can declare in the main also structure student s100. So this is the array we have created. Okay, this is the array we have created. Just we'll build this and we'll check for errors. Okay, there is no errors. So what you have to do, you have to make a practice. Okay, whatever you are writing now, just I have declared here structure and I have built the file. So just you have to check it is proper or not. Okay, instead of making a big code and then troubleshooting line by line, small things you need to check over here. Okay, so now what we have seen, this is an array. That means we can save a data of number of students. Okay, so what I will do, I will say print f and I will ask. Here I required integer n, that how many students we want, and we also required, okay, right now we required I also integer, two integers we required. So first we'll take from a user that how many students, और enter total number of students. we कितने total students हैं. So that will be our reference. Okay, and where we will put this, we'll take into the n. Okay, so n indicates total number of, so it is easy for us that how many students we want to display, how many students database we want to create, that we'll decide first. Okay, and we'll do for that only, that number of students only. Okay, now for I equal to 0, I less than n, I प्लस प्लस. ठीक है, ये फॉर लूप लगा रहे हैं हम. क्यों लगा रहे हैं हम, यहाँ पे क्या करेंगे अभी, हम इस फॉर लूप से ये जो हमारा S1 है, S1 ये क्या है, S1 is a array of this structure student. Okay, S1 is a variable
ऑफ द स्ट्रक्चर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर स्टूडेंट का वो वेरिएबल है S1, ठीक है। सो हम यहाँ पे S1 में कितने स्टूडेंट के लिए बनाया मैंने, दिस इज अरे ऑफ 100 स्टूडेंट्स, बट इट इज डिपेंड ऑन हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स वी हैव, ओके। सो विल स्टार्ट विथ ओनली 3-4 स्टूडेंट्स, ओके। So here I will ask for enter total number of students. So what we will do, यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स का डेटाबेस ये स्ट्रक्चर में डालते जाना है, ओके। So how we are going to access this S1? How we are going to access this S1? Can anyone tell me? Enter the roll number of student. हम roll number लेंगे यूजर का, will print a message, enter the roll number of student. Where we are going to put this? We are going to put this in S1 dot roll number, okay. But this is only one field and S1 is an array, so we need to mention here in a square bracket S1 of I, that is it is an array, okay. So first student है तो I का value 0 रहेगा, because the array indexing starts with 0 1 2 3 4 5 this, okay. So like this way we are going to access the field of a structure. हमारा structure student है, structure is structure student, and its variable is this is its variable S1, okay. It's variable S1, and this is a array, okay. So we have mentioned in a square bracket 100. So here we have taken its name. Same way what we will do, so this for loop will be run for n number of students, whatever number of students we have put for them it is. उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर नेम ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। हमें स्टूडेंट का नाम लेना है, कहाँ पे सेव करना है, ऊपर कैरेक्टर नेम में सेव करना है। इसका साइज में ज्यादा नहीं देती हूँ, 20 देती हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमें सेव करना है, तो यहाँ पे अभी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे एंड नहीं देंगे, हम string डॉट h यूज कर रहे हैं। सो इट इज S1 ऑफ I डॉट नेम आएगा, ठीक है। और तीसरा हमें हियर इट शुड बी परसेंटेज s बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग, ठीक। और तीसरा हमें लेना है यूजर से एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स क्या है, फ्लोट है, सो यहाँ पे आएगा हमारा परसेंटेज f, ओके। एंड यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एंड S1 ऑफ I डॉट मार्क्स, ठीक है। सो ये हो गया, वी आर क्रिएटिंग अ डेटाबेस, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, ये फॉर लूप ये जो है ना, दिस इज वी आर क्रिएटिंग अ डेटाबेस फॉर n स्टूडेंट, and what is the value of n, that also we are taking from a user, okay. That also we are taking from a user ki what is the value of n. Now we'll build this project, okay. Now there is no error, we'll run this. Now enter the total number of students, so I will say 3 students, okay. Now enter roll number, so I will say 3, name Vijay, marks 78.2. Enter the roll number again, because this is a for loop, okay. This for loop will run for how many times, 3 times, because we have enter the total number of students. तो total number of students मैंने कितने बोला है, 3, तो ये तीन टाइम ये लूप चलेगा। रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये जो 3 है ये 3 टाइम चलेगा। नाउ रोल नंबर 5, आई एम एंटरिंग रैंडमली पर्पसफुली, ओके। रैंडमली हम डाल रहे हैं नंबर्स, इसके एक सीक्वेंस से नहीं डालेंगे क्योंकि सॉर्टिंग करना है बाद में हमें। नाउ एंटर द नेम, सीमा, percentage 82.6. Now third, roll number 2, okay. Name Sanjay, marks 90.4, ठीक है। Now we are not able to see it, okay. We have just created, this is the process of creating structure, okay. This is the process of creating database. This is the process of creating database. Creating database means we have store the value into the array of structure, okay. What is our array of structure? S1 is our array of structure. यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है, यहाँ पे हमने उस वैल्यू को स्टोर किया है। तो ये जो प्रोसेस है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें मेन में ही लेना पड़ेगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ, और उतने के लिए बनाएंगे हम, ओके।
अभी हम क्रिएट कर रहे हैं तो कितने स्टूडेंट्स है उसने उतने के लिए हम बनाएंगे. सो दिस इज फ्रॉम लाइन नंबर 20 to 30. This is the process to create the database. Okay, ये डेटाबेस क्रिएट करने की प्रोसेस है. ओके, अभी ये मैंने चेक किया, मैंने कहाँ पे लिखा ये कोड? ये कोड मैंने लिखा है मेन फंक्शन में, पर अभी हम इसको कट करेंगे और इसका एक स्मॉल फंक्शन बनाएंगे. मेन फंक्शन में बनाया ना मैंने इंट मेन. ओके, अभी मैं क्या करती हूँ, इंट मेन के ऊपर यहाँ पे एक मैं फंक्शन तैयार करती हूँ. क्रिएट डेटा. ओके, ये मैंने फंक्शन तैयार किया, पर फंक्शन तैयार करते समय ये कुछ रिटर्न कर रहा है क्या? नहीं रिटर्न कर रहा है. सो दिस इज अ विच टाइप ऑफ फंक्शन? वॉइड टाइप ऑफ फंक्शन. नाउ दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसको पैरामीटर लगेंगे. क्या पैरामीटर लगेंगे? ये कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो पैरामीटर लगेगा. और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये क्रिएट का ऑपरेशन करने वाले हैं ना, ये S1 वाला. ओके, ये सब हम करने वाले हैं. तो अब मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल भी लगेगा. सो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करती हूँ कि दो पैरामीटर मुझे चाहिए. एक चाहिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये जो हमारा स्ट्रक्चर स्टूडेंट है उसका मुझे एक वेरिएबल चाहिए. सो स्ट्रक्चर स्टूडेंट, सपोज आई विल से S1. ओके, सो जैसे हमने फंक्शन को लिखते हैं, सो दिस इज द वे टू पास द पैरामीटर. ओके, दिस इज द वे टू पास द पैरामीटर एंड द पैरामीटर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अरे. स्ट्रक्चर ऑफ अरे अगर हमें पास करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा उसे. ओके, उसका साइज लिखने की जरूरत नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट लिखो. और दूसरा पैरामीटर पैरामीटर मुझे क्या पास करना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो मुझे यहाँ पे पास करना है. ऐसे मैंने ये फंक्शन बनाया है, पर इस फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे? इस फंक्शन के अंदर जो मैंने यहाँ पे नीचे फॉर लूप लिया था मेरा, ये फॉर लूप में यहाँ से कट कर देती हूँ. ओके, और कहाँ पे डालेंगे इसे? यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर डाल देंगे. ठीक है, अभी इस फंक्शन में इंटीजर आई है तो यहाँ पे आई को डिक्लेयर कर दो आप. ओके, नाउ हाउ वी विल कॉल दिस फंक्शन? एक मिनट, यहाँ पे इसका फॉर लूप है. नाउ इन द मेन हाउ वी विल कॉल दिस फंक्शन? इस फंक्शन का नाम क्या है हमारा? ये हमारा फंक्शन है क्रिएट डेटा. ओके, क्रिएट डेटाबेस. सिंपली हम डेटाबेस ही लिखते हैं इसका नाम, क्रिएट डेटाबेस. यहाँ पे हम है उसका डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं. सो उसका नाम मैंने लिया, यहाँ पे डाला क्रिएट डेटाबेस. तो यहाँ पे मुझे पहले कौन सा पैरामीटर चाहिए? पहले मुझे अरे ऑफ स्ट्रक्चर पास करना है और दूसरा मुझे एक एन वैल्यू पास करना है, इंटीजर एन. सो हम इसको कॉल करते समय ऐसे नहीं लिखते हैं, डिक्लेयर करते समय. सो मुझे S1 मैंने यहाँ पे लिख दिया. व्हाट इज S1? इट इज array of structure and n I have passed and semicolon. Now this line create the function create database. Okay, and this is the way we create the function. पहले मैंने क्या किया है, see this carefully line by line. Just I have created that database into the main and I tested that. Okay, I tested it is creating properly without any error. Yes, it is creating properly. So by using that statement I create the function. Okay, अभी यहाँ पे मेन में तो मुझे आई की जरूरत, टीचर आई की वहां पे ही जरूरत थी. सो विल सी दिस. ओके, विल बिल्ड दिस प्रोजेक्ट. Okay, there are zero errors, so we can run this. Now it is asking total number of students. Again, I will say 3. Enter. Now it is enter the roll number. Okay, this message is displayed. Enter the roll number. That means it the function is get called. Okay, इसका meaning है कि function call हुआ है, तभी तो उसके अंदर हमने जो लिखा था statement वो हुआ है यहाँ पे. So I will again say 3. Same Vijay. Percentage 76.2. Next Seema, नहीं roll number 5. Seema, percentage 86.3.
then next roll number 2, name Vijay, percentage 90. Okay, so this is also working. That means we have created one function. Which function we have created? Create database function we have created successfully. ठीक है, डाउट है इसमें कुछ? You have to do it simultaneously. Okay, how to create the array of structure, how to save it, how to display it, already we have done that program. Okay, वो program मैंने आपको already explain किया है. अभी उसी program में मैंने modify करके जो create database नाम का function तैयार किया है. Create a database. Okay, like this way you have to do your lab. It is a compulsory experiment. Okay, it is a compulsory assignment. तो create हो गया. अभी display करने के लिए क्या करना पड़ता है? डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ता है? ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक इंटीजर लेती हूँ. अगेन आई विल टेक इंटीजर आई. ओके, उसकी जरूरत रहेगी. हम यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया, ऊपर क्रिएट फंक्शन यूज किया है. आफ्टर दैट नाउ I want to display. So how many students are there? I know that total number of students are n. So again I equal to 0. I is less than n. I plus plus. This loop is to display the total number of students. Okay, so हमें डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए हमें प्रिंट एफ मैसेज चाहिए. ओके, क्या डिस्प्ले करेंगे? रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट. ये तो हम सिर्फ रोल नंबर लिखते हैं. रोल नंबर क्या है हमारा? परसेंटेज डी. उसके बाद में डालती हूँ स्लैश टी, टैब, स्पेस आएगा, हॉरिजॉन्टल स्पेस. नेम सेमीकोलन. नेम क्या है हमारा? परसेंटेज एस. उसके बाद आएगा स्लैश टी अगेन. ओके, देन आफ्टर नेम marks. Marks, what is the marks? It is a float, so it is percentage f. Again after that I will put slash n. Okay, these are the three fields, and we call that three fields. Which three fields? S1 of I dot roll number, ये पहला फील्ड है, कॉमा S1 of I डॉट नेम, ये दूसरा फील्ड है, कॉमा S1 of I डॉट मार्क्स, ये तीसरा फील्ड है. ठीक है, ये तीन फील्ड है हमारे. एंड विल प्रिंट ओनली वन मैसेज, बट दिस विल रन फॉर हाउ मेनी टाइम्स? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसके लिए वो रन करेगा. ओके, S1 ऑफ आई यहाँ पे है, तो आई का वैल्यू चेंज होगा, जैसे ये उतने नंबर ऑफ टाइम रन होगा. विल बिल्ड दिस. ओके, नो एरर. Again it will ask, it is every time it will ask. So number of student 3, roll number 3, marks 76 something. ठीक है, roll number 5, then marks 86.3 something, then roll number 2. ये दिस इज क्रिएट डेटाबेस फंक्शन. ओके, ये यहाँ पे कॉल हुआ है क्रिएट डेटाबेस. एंड परसेंटेज 90.2. नाउ हियर इट विल डिस्प्ले. ओके, ये डिस्प्ले का हमारा जो फंक्शन है, रोल नंबर नेम मार्क्स, रोल नंबर नेम मार्क्स. ओके, यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है. जो हमारा प्रिंट एफ मैसेज है वो 3 टाइम पे चला, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 लिया है. कि आप 100 है तो कितना भी ले सकते हैं, डेटाबेस बहुत बड़ा होता है. ओके, सो ये सिंपल एग्जाम्पल है. अभी ये जो मैंने डिस्प्ले किया है ना, ये इतना यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक मैंने डिस्प्ले किया है. सिर्फ एक ही लाइन है ना, 2 3 फॉर लूप एंड वो, ये इतना जो डिस्प्ले किया है, दैट डिस्प्ले
Okay, that display is your, that display, इसका हम फंक्शन बनाएंगे. कौन सा फंक्शन बनाएंगे? डिस्प्ले डेटाबेस फंक्शन. ठीक है, सो फिर से मेन के ऊपर चले जाएंगे. तो मेन के ऊपर पहले, सबसे पहले हमने क्या बनाया था? सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया था. एंड वी हैव दिस इज S1 इज अरे ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था. फिर उसके बाद हमने void create अंडरस्कोर डेटाबेस, ये हमने यहाँ पे बनाया है एक फंक्शन. ठीक है, वैसे ही हम फंक्शन बनाएंगे इंट मेन के ऊपर. void create की जगह पे यहाँ पे आएगा डिस्प्ले, दूसरा फंक्शन है ये, display underscore database. This is the name of a function. Okay, while giving a name of a function, जो common rule है वो follow करने. इसको भी हमें स्ट्रक्चर पास करना है, अरे ऑफ स्ट्रक्चर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए पास करना है कि कितने हमें डिस्प्ले करने हैं. ये हमारा फंक्शन है. ठीक है, इस फंक्शन के अंदर क्या आएगा? ये जो मैंने टेस्ट किया है नीचे, properly. Okay, it has some syntax errors or something errors that we have tested, and then we are creating a function. ऐसे ही हमने स्ट्रिंग के लिए भी किया था. हमने एक एक स्मॉल 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 चीजें पहले ट्राई करके फिर उसका फंक्शन बनाया था. फिर उसके बाद इसका हम स्विच केस बनाएंगे. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द यूजर चॉइस इट विल वर्क. नाउ दिस इज दिस फंक्शन आई नीड टू कॉल. ये फंक्शन मुझे कॉल करना है. कहाँ पे कॉल करना है? मेन में. मेन में हमने क्रिएट डेटाबेस कॉल किया, पर कॉल करते समय कैसे कॉल करते हैं? हम स्ट्रक्चर को पास करेंगे. स्ट्रक्चर इज S1 और नंबर ऑफ स्टूडेंट n एंड सेमीकोलन. नाउ हियर जस्ट वी कॉल द फंक्शन. जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, इट विल कॉल दैट फंक्शन. ये जो ऊपर है डिस्प्ले का, ये कॉल हो जाएगा यहाँ पे. ओके, और डिस्प्ले के अंदर हमने फॉर लूप डाला है. हाँ, यहाँ पे मुझे इंटीजर लेना पड़ेगा आई, क्योंकि आई डिक्लेयर नहीं है. यहाँ पे आई यूज किया है, तो फंक्शन के अंदर इंटीजर आई लेना पड़ेगा. ओके, अगेन विल बिल्ड दिस प्रोजेक्ट. वन वार्निंग, इट इज यहाँ पे अनयूज्ड है. ठीक है, बट हमें हर बार लगता है तो हमने वहां पे वैसे ही रखा है. नाउ विल अगेन इट विल आस्क नंबर ऑफ स्टूडेंट 3. ओके, सो रोल नंबर 3. ओके, और डिस्प्ले भी हो रहा है. सो we have done it properly. We have created two functions. Which two functions? We have created the function create database and display database, and these two functions are totally based on uh, whatever simple code we have studied, how to create the array of structure. Okay, array of structure कैसे बनाना है और उसमें उसको कैसे डेटा डिस्प्ले करना है, ये प्रोग्राम मैंने आपको लास्ट क्लास में लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ाया है, और सेम एग्जांपल लिया था हमने वहां पे. तो उसी को यूज करके मैंने यहाँ पे दो फंक्शन बना दिए. कौन से? क्रिएट डेटाबेस एंड डिस्प्ले डेटाबेस. नाउ यू नो दैट व्हाइल डिस्प्लेइंग डेटाबेस, रैंडम नंबर्स मैंने लिए. ओके, द डेटाबेस इज नॉट अरेंज्ड प्रॉपरली. डेटाबेस प्रॉपरली अरेंज नहीं है. तो हमें डेटाबेस को प्रॉपरली अरेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें डेटाबेस को प्रॉपरली अरेंज करना है तो हमें सॉर्टिंग करना पड़ेगा, अरे को सॉर्ट करना पड़ेगा. सो हमने ऑलरेडी कल के लेक्चर में बबल सॉर्टिंग पढ़ा था. ठीक है, कल के लेक्चर में हमने बबल सॉर्टिंग पढ़ा था. तो हम यहाँ पे मेन में ही पहले सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं. यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करती हूँ. दिस इज डेटाबेस विदाउट
sorting. Okay, and now we'll sort and after that again we'll display the database. Okay, so sorting के लिए मेरे दो नेस्टेड फॉर लूप है, एक पहला फॉर लूप, ठीक है, पहला फॉर लूप आएगा, फिर इस फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप आएगा, ओके, और फिर दूसरे फॉर लूप के अंदर एक इफ कंडीशन आएगा, ऐसे हमारा बबल सॉर्टिंग का एल्गोरिथम शुरू होता है। ठीक है, बबल सॉर्टिंग के लिए मुझे एक टेम्पररी वेरिएबल भी लगता है, एक टेम्पररी वेरिएबल की जरूरत है बबल सॉर्टिंग के लिए। तो वो मैं एक टेम्पररी वेरिएबल यहाँ पे ऊपर लेती हूँ। कौन सा टेम्पररी वेरिएबल चाहिए मुझे? मुझे चाहिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट टेम्प। ओके, ये मुझे एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट का एक टेम्पररी वेरिएबल चाहिए, क्योंकि स्वैपिंग करना पड़ेगा ना हमें अकॉर्डिंग टू दिस। बबल सॉर्टिंग में क्या होता है, पहले दो नंबर चेक होते हैं, अगर पहला नंबर बड़ा है तो वो दूसरे पोजीशन में जाता है और दूसरा नंबर पहले पोजीशन में आता है। ठीक है, ऐसे करते करते बड़ा नंबर सबसे लास्ट में चला जाता है स्वैप होते होते। ठीक है, सो पहला फॉर लूप में क्या कंडीशन है, पहले फॉर लूप में क्या कंडीशन है, आई इक्वल टू n-2, राइट। पहले फॉर लूप में क्या कंडीशन है, आई इक्वल टू n-2, आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ये हमारी पहली फॉर लूप की कंडीशन है। और बबल सॉर्टिंग, ओके, सेम कोड वी हैव सीन इन यस्टरडेज लेक्चर। जे नेक्स्ट फॉर लूप में क्या है, नेक्स्ट फॉर लूप में क्या है, जे इक्वल टू 0, जे शुड बी लेस देन आई एंड जे प्लस प्लस, दिस इज आवर कंडीशन फॉर सेकेंड। अभी हम क्या चेक करते हैं, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है क्या, तो हम सॉर्टिंग किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे सॉर्टिंग करते हैं रोल नंबर के अकॉर्डिंग, कि डेटाबेस डालते समय हमने ऊपर नीचे डाला है, कौन सा रोल नंबर कहीं भी डाला है, पर मुझे अभी उसे उस अरे को प्रॉपरली सॉर्ट करना है रोल नंबर वाइज। ओके, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि पहले पोजीशन का जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर दूसरे पोजीशन के स्टूडेंट के रोल नंबर से बड़ा है छोटा है, अगर बड़ा है तो वो सेकेंड पोजीशन में चला जाएगा। ओके, इसके लिए हमारा कंडीशन इफ में क्या कंडीशन आएगा, S1, इफ के अंदर हमें रोल नंबर चेक करना है, रोल नंबर, तो S1 ऑफ I डॉट रोल नंबर, ये हमें चेक करना है, S1 ऑफ J, सॉरी I नहीं, S1 ऑफ J, ये पहला जो है S1 ऑफ डॉट J1 रोल नंबर, ये S1 ऑफ J प्लस 1 डॉट रोल नंबर। ठीक है, अरे के अंदर S1 ऑफ डॉट रोल नंबर, ओके, सो ये जो है इसमें जे पोजीशन का रोल नंबर और J+1 पोजीशन का रोल नंबर, अगर S1 ऑफ J इसका रोल नंबर बड़ा है तो ही स्वैप करेंगे, नहीं तो स्वैप नहीं करना है। तो इफ कंडीशन के अंदर अभी हमें स्वैप करना है। ठीक है, अभी हम स्वैप करते समय सिर्फ रोल नंबर नहीं स्वैप करेंगे, वो पूरा की पूरा स्ट्रक्चर स्वैप करेंगे। ओके, ये उस स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम और मार्क्स तीनों के तीनों उस पोजीशन में, अरे ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, हमारा जो अरे है वो स्ट्रक्चर का अरे है, तो उसमें हमें सिर्फ वो स्ट्रक्चर के अंदर का एक फील्ड चेक कर रहे हैं, हम रोल नंबर वाला फील्ड चेक कर रहे हैं, फिर रोल नंबर हम रोल नंबर से अरेंज करेंगे और वैसे उसका पूरा स्ट्रक्चर हम स्वैप करते जाएंगे। तो हम टेम्प में क्या इसको डालेंगे, टेम्प में हम डालेंगे, अगर S1 बड़ा है तो हम S1 को S1 ऑफ I, सॉरी S1 ऑफ J, S1 ऑफ J को टेम्प में डालेंगे और S1 ऑफ J की जगह पे कॉपी करेंगे S1 ऑफ J+1 को। ठीक है, और S1 ऑफ J+1 को हमने S1 ऑफ J की जगह पे कॉपी किया और फिर S1 ऑफ J+1 की जगह पे हम टेम को कॉपी करेंगे। सिंपल हमारा स्वैपिंग ऑपरेशन है, ये क्या है, हमारा सिंपल स्वैपिंग ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक सॉर्टिंग प्रोसेस के, बबल सॉर्टिंग ऑपरेटिंग। ओके, बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम इंप्लीमेंट किया है हमने यहाँ पे, बट इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे, अरे ऑफ स्ट्रक्चर पे इंप्लीमेंट करते समय ध्यान देना है कि कैसे फील्ड को एक्सेस किया जाता है। ये यहाँ पे S1 ऑफ J डॉट रोल नंबर, ये एक फील्ड है, इस स्ट्रक्चर, अरे ऑफ स्ट्रक्चर की एक फील्ड है और रोल नंबर के अकॉर्डिंग टू हम वहां पे उसको चेक कर रहे हैं।
तो इफ कंडीशन में सिर्फ हमारा चेकिंग के लिए हम कैसे फील्ड को एक्सेस करते हैं, कैसे लिखते हैं, वही मेथड बदल जाता है, बाकी तो प्रोसेस लॉजिक सेम ही है। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया। अभी हम फिर से क्या करेंगे, फिर से एक बार हमारा डेटाबेस डिस्प्ले कर देंगे। ओके, डिस्प्ले डेटाबेस आफ्टर सॉर्टिंग। ओके, और हम डिस्प्ले का ही फंक्शन कॉल कर देंगे, डिस्प्ले का ही फंक्शन कॉल करेंगे तो वो सेम फंक्शन कॉल होगा, पर इसके अंदर S1 के पोजीशन स्वैप हुए रहेंगे और वो सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग टू रहेंगे। ओके, नाउ विल बिल्ड दिस प्रोजेक्ट। व्हाट इज द एरर? जे अनडिक्लेयर्ड। ओके, सो मेन में हमें यहाँ पे जे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। Error is what? Error J undeclared. Okay, so we have to declare the J. Now again we build this project. Now no errors. Okay. Now create database. Here I will take now 5 students. Okay. ये sorting operation है तो properly होने के लिए, दिखने के लिए 5 students लेते हैं. First I will take roll number 4. Any name you can put, any number of marks you can put. Okay. रोल नंबर 4 डाला, फिर मैं यहाँ पे डालती हूँ रोल नंबर 2. नाउ आई एम एंटरिंग रैंडमली. ओके, रैंडम रोल नंबर्स डालती हूँ यहाँ पे. रोल नंबर 2 है. ठीक है, नाउ रोल नंबर 1 डाला उसके बाद. नाउ उसके बाद रोल नंबर 3 डालेंगे. कितने हुए स्टूडेंट्स? 4 2 1 3. ओके, अगेन 1. एक रोल नंबर 5 डालेंगे. Okay, now you can see here. Now see properly this output. This I have entered. Now database without sorting. यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एंटर किया था 4 2 1 3 5, वो रैंडम ऑर्डर से था 4 3 4 2 1 3 5. नाउ आप यहाँ पे देखो सॉर्टिंग अल्गोरिदम हमारा वर्क हो गया है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये फील्ड हमने पूरा स्ट्रक्चर को स्वैप किया था. ओके, स्ट्रक्चर एक, क्योंकि हमारा जो अरे है एक फील्ड का अरे नहीं है, एक फील्ड नहीं बदल सकते हम. अरे इट इज अरे ऑफ स्ट्रक्चर है, तो हमें पूरा स्ट्रक्चर उठाना पड़ता है. तो पूरा स्ट्रक्चर वो सॉर्ट हो गया. रोल नंबर 1 जो था संजय, वो संजय यहाँ पे, और उसके मार्क्स वैसे वो स्वैप हो गया. ये हो गया यहाँ पे सॉर्टिंग. ओके, पर ये जो सॉर्टिंग हुआ है ये डायरेक्टली लेना है क्या? हमें नहीं, हमें क्या करना है, इसका भी हमें फंक्शन बनाना है. ओके, तो अब आज हम इतना 3 फंक्शन का ही देखेंगे, और ये स्टडी करो साइमल्टेनियसली, नहीं तो बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग रह जाएगा आपका. 27 नियर अबाउट टोटल सेमिस्टर में पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी ने 40 लेक्चर्स बोला है. कितना? 40 लेक्चर्स. ओके, एंड आई हैव टॉट यू 1.5 यूनिट इन 27 लेक्चर्स. तो अभी आप देखो कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स हो रहे हैं हमारे. एज पर द यूनिवर्सिटी रूल चलेंगे तो अभी तक हमारे 3 4 यूनिट्स होने चाहिए थे, 4 यूनिट तक कम से कम होने चाहिए थे. ओके, सो अभी हमने ये जो लिया है यहाँ पे, ये मैंने मेन में टेस्ट किया था. क्या है, यहाँ से शुरू किया था. आई रिक्वायर्ड द स्ट्रक्चर स्टूडेंट टेम्प ऑल्सो. सो हम वहां पे ऊपर लेंगे. कहाँ से शुरू किया था? ये मेरा मेरा बबल सॉर्टिंग है, फॉर लूप. राइट, ये फॉर लूप हमारा बबल सॉर्टिंग है. ये इसको मैंने यहाँ पे टेस्ट किया पहले, काम कर रहा है क्या? यस, ये काम कर रहा है, सॉर्टिंग हो रहा है प्रॉपरली. तो अभी हम इसका फंक्शन बनाएंगे. फंक्शन बनाने के लिए फिर से मेन के ऊपर. ठीक है, अभी हमारे मेन के ऊपर ऑलरेडी 2 फंक्शन है, क्रिएट डेटाबेस, डिस्प्ले डेटाबेस. ओके, अभी यहाँ पे इसको, इस फंक्शन को नाम क्या देंगे हम? सॉर्ट डेटाबेस. डेटाबेस सॉर्टिंग करना है, ये हो गया. और इसके अंदर हमें क्या डालना है? इसके अंदर हमने ये नीचे फॉर लूप, 2 फॉर लूप लिए थे हमारे, ये हमारा फॉर लूप याद ही रखो. फर्स्ट फॉर लूप, सेकंड फॉर लूप, इफ कंडीशन स्वैपिंग, ये है हमारा बबल सॉर्टिंग. ओके, ये फॉर्मेट ही है, बबल सॉर्ट मैंने कल ही पढ़ाया है आपको.
यहाँ पे लिया, पर इसके लिए हमें क्या क्या वेरिएबल्स चाहिए? इसके लिए हमें वेरिएबल्स क्या क्या चाहिए? ये वेरिएबल्स चाहिए हमें। ओके, ये फंक्शन के अंदर होने चाहिए। कौन से वेरिएबल्स? एन नहीं चाहिए, एन इज ऑलरेडी देयर, यहाँ पे लिया है हमने। इंटीजर आई और जे चाहिए, एंड स्ट्रक्चर स्टूडेंट टेम्प, ये एक टेम्प स्ट्रक्चर स्टूडेंट का एक वेरिएबल टेम्प, ये भी मुझे चाहिए। ठीक है, ये हमें चाहिए। यहाँ पे अभी टेस्टिंग के लिए लिया था, यहाँ से निकाल देते। और ये यहाँ से भी मेन में से ये मैंने ऊपर ले लिया है वो फंक्शन में। ठीक है, अभी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम क्या है हमारा? सॉर्ट डेटाबेस, ये हमारा फंक्शन का नाम है। उसको हम मेन में लेंगे। ठीक है, और इसको क्या पास करना है मुझे? इसको पास करना है स्ट्रक्चर, अरे ऑफ स्ट्रक्चर एंड एन। ठीक है, सो ये सॉर्टिंग हो जाएगा, और सॉर्टिंग के बाद फिर से वो डिस्प्ले भी करेगा। हम्म, ओके, थोड़ा फॉन्ट साइज कम हो गया है। So we'll build this project. Now there is one error. Scanf. Here we required semicolon. ING unused, it's okay. Now we'll run this. Now total number of student I will take 5 again, and I will again enter randomly. रोल नंबर 4 के बाद 2 डालेंगे। Then again I will put suppose roll number 1. Then roll number कितने हो गए? 4 2, roll number 4, roll number 2, roll number 1. Now roll number 3. Then roll number 5. ठीक है, now you can see database without sorting एंड डेटाबेस आफ्टर सॉर्टिंग, और ये सॉर्टिंग के बाद डिस्प्ले हो रहा है, मतलब हमारा सॉर्टिंग ऑपरेशन का फंक्शन भी काम कर रहा है। 1 2 3 4 5, ये सॉर्टिंग दिख रहा है रोल नंबर आफ्टर सॉर्टिंग, और यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ऐसे मैंने रैंडमली दिया था स्टार्टिंग में एंटर करते समय, एंड आफ्टर सॉर्टिंग दिस। ओके, so this 3 functions we have studied. Again 3 functions are remaining. ओके, आज के इसमें हमने ये 3 फंक्शन स्टडी किए हैं। Okay, you have